tables an important point, an important part of data interpretation. The three different kind of tables as they are saying it to you. One is a single complete table, which is the easiest one. Then there is single incomplete table. थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम इसको कंप्लीट करते हैं एज पर द क्वेश्चंस. एंड देन वी हैव मल्टीपल फिगर. दैट मींस या तो दो टेबल्स दी जाएंगी या टेबल्स के साथ चार्ट दे दिया जाएगा. चार्ट इट कैन बी अ टेबल एंड अ पाई चार्ट, अ टेबल एंड अ बार ग्राफ, और अ टेबल एंड अ लाइन ग्राफ, या एनी कॉम्बिनेशन, अ मल्टीपल फिगर. नाउ दिस इज समथिंग विच इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड द टफेस्ट पार्ट ऑफ डी आई. अभी जब जब कर रहे हैं वो सब बेसिक्स है. This is the toughest part which we're going to get. Let's start the questions. Now the question says a college chain has 5 engineering colleges, E1 to E5, 5 colleges in 5 cities. And the table below, मतलब जो table आपको दिया जाएगा अभी, that shows the number of students studying in each college in 2016. Let's say what is this table all about? So this is the table they have given to us. This is for year 2016. Now the question says what is the ratio of number of students from Nagpur in E1 and E4 together to the number of students from Indore in E3 and E5 together. एक ही नाम से कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है? लेट मी सी. मानवी, from how many different devices you are logging in? I can only allow one person in my class. Manvi, there are, I can see that 2 or 3 different people with your name. 3 people now with your name. I'm going to remove all 3 of you, and whosoever is real Manvi, please WhatsApp me and log in with your complete name. The classes are not free. Now, it says what is the ratio of number of students from Nagpur in E1 and E4 together? Now, Nagpur, if we see, that is in this particular row. E1 and E4. E1 में वो 200 है, E4 में that is 160, total हो गया 360. To the number of students from Indore. Indore we have E3 240, E5 210. That total comes out to be 450. They asked about the ratio. That means divide. 0 से 0 cancel. 9 into 4 and 9 into 5. That means the answer I get, that is 4:5. This is the answer we have. Quite clear, I believe. Let's go with the next one. The second question says number of students in E2 in each city is a growth of 20% over the previous year. How many students did E2 have in 2015? तो 2016 में जो total है वो कितना है? Let's find it out. We have it 210, 160, 180, 270, 260. The total comes out to be 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 810, 870, 950, 1020, and 1080. Now, 2016 May, we know that E2 is 1080. We have to find out 2015. Now, उन्होंने मुझे ये बोला है कि जो 2016 का नंबर है that is 20% more, मतलब that is 120 by 100 of the numbers which are in 2015. अब मेरे को ये नंबर फाइंड आउट करना है. That means this will go towards the left hand side. 2016 का नंबर I have that is
8080 multiplied by 100 divide by 120 that will be equal to 2015 का जो टोटल नंबर मेरे पास जो मुझसे पूछा गया है. I'll get the answer from there. Now if I just calculate it, 0 से 0 cancel, 12 into 9, that means in 2015 I had total 900 numbers. Now that is my answer. I hope this is quite clear. Give me a poll, yes, no. Is this clear to everybody? Because some people, what exactly they do, वो 1080 का 120% निकाल लेते हैं, and that is a wrong answer. हमें ये देखना है कि 2015 में कितना था. We have to go back. Great. Everybody said yes. Very good. Let's go to the next question now. The next question says, here the answer we are matching it. 900 is done. Now the next question says number of students in even from Chennai. Now even from Chennai, let's see what is this number. Chennai and E1, that is 170. This number which we have, that is 170, 170. Is what percent of number of students in E2 from Nagpur? So Nagpur mein E2, Nagpur, that is 260. I have to tell कि जो 170 है वो 260 का कितना परसेंट है. मैंने कल भी आपको बताया था जब हम परसेंट निकालते हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट जब जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो न्यूमरेटर आएगा, दैट मींस 170, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन E2, तो हम कंपेयर कर रहे हैं 260 से मल्टीप्लाइड बाय 100. अब देखो मैं सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करने वाला. 17/26 में इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं करूंगा. व्हाट एग्जैक्टली आई कैन इजिली सी कि अगर इस नंबर को मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, अगर दोनों में +1 कर दिया जाए, 18/27 2/3, 2/3 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 66.66%. तो मेरा जो भी आंसर 66.66% के पास होगा, दैट इज माय आंसर. क्योंकि मैंने नंबर्स इंक्रीज किए हैं तो मेरा आंसर थोड़ा सा छोटा होगा. तो ऑप्शंस होंगी आपके पास, यू कैन फाइंड आउट योर आंसर. आई कैन सी द आंसर इज जस्ट बिलो इट, 65.38. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. देखो एग्जाम में टाइम कम होता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स ऑल्सो बी इन माइंड. इज दिस क्लियर? गिव मी a yes no on that also. Now let's go further. The last question of this table we had: which city sends the highest average? Average का concept कल किया था हमने, sum of terms divide by number of terms. So which city sends the highest average number of students per college to this college chain? तो average निकालना है, per college निकालना है. That means let's say कौन सी सिटी. तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इन सब सिटीज का, चेन्नई का, हैदराबाद का, मुंबई का, इंदौर का, नागपुर का, सबका एवरेज निकालना है. बट एवरेज जब मैं निकालूंगा, अगेन आई एम कटिंग इट शॉर्ट, जब मुझे एवरेज निकालना है, सबको डिवाइड बाय 5 करना है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं. जो मैक्सिमम होगा वो हाईएस्ट होगा. ऑब्जर्वेशन में चलेंगे. चेन्नई 5C 170, 210, 140, 250, 190, दो ऐसे नंबर्स हैं जो 200 से ऊपर है, बाकी सब उससे नीचे. इफ आई टॉक अबाउट हैदराबाद, हैदराबाद में भी दो ऐसे नंबर्स हैं जो 200 से ऊपर है, बाकी सब 200 से नीचे, 230 एंड 205. मुंबई में तीन नंबर्स 225, 200 एंड 220. इंदौर 270, 240, 210,
नागपुर ऑल्सो 200, 260 एंड 230। मैं सबको ऐड करूं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सिंपली आई कैन सी चेन्नई इस रेस से बाहर है बिकॉज तीन उसके 200 से नीचे और एक बहुत कम है 140, 170, 190। चेन्नई कांट बी माय आंसर। हैदराबाद में भी दो ही हैं और दो नंबर्स है 150, 185, 160। दैट इज ऑल्सो क्वाइट लो। मुंबई, इंदौर, नागपुर में से एक आंसर होना चाहिए। मुंबई 200, 225, 220, Indore 270, 240, 210. This seems to be the on the higher side. And Nagpur is 200, 260, 235. तो मुझे सिर्फ इन दो को चेक कर लेना है, I'll get my answer. तो if I check now, मेरा जो इंदौर का नंबर बनने वाला है, द टोटल गोना बी 100। अब देखो कैलकुलेशन नॉर्मली जीरो पीछे से लोग करते हैं, मैं स्टार्टिंग से करता हूं जैसे जिसको कंफर्टेबल है। व्हाट आई डू, 100 and 2 300, 500, 600, 800। 800 तो पक्का हो गया। 40, 70, 110, 140, 150, 215, 215। दैट मीन्स ये हो गया 10, 1000, 15 और 25। Now that next we have 200 to 400, 5, 6 to 800, 860, 910, 970, and this is 1015. This is quite close. I think ऊपर वाला हमें दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 7 8 840, 910, 950, 960। हाँ, this is 1025। ये वाला जो नंबर है this is 1025। That means जो इंदौर है that is my answer. That's what they have. Indore gonna be the highest number, इंदौर का ही आने वाला है। This is the quite simple table. अब एक और टेबल का क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ दे से द टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ व्हीट्स इन टन्स। तो दे नंबर्स जो है ये टन्स के अंदर है, प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्टेट्स ओवर द ईयर। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब। नंबर्स गिवन है, तो नंबर्स की गेम। आई थिंक द क्वेश्चन गोना बी सेम लाइक प्रीवियस वन। तो मुझसे पहला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोना डिक्टेट टू यू, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन मुझे सिर्फ ये कोशिश करनी है कि इस टेबल्स के सारे टाइप मैं आपको क्लियर कर दूं। तो पहले वाली टेबल भी नंबर्स पे थी सिंपल, ये भी नंबर्स में है। क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। विच स्टेट हैज प्रोड्यूस द लोएस्ट क्वांटिटी। तो मुझे स्टेट्स को ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से चेक करना है, कौन सी स्टेट सबसे कम होगी, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, वही कैलकुलेट किया हुआ है इन्होंने, तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाओ, आपको टाइम कम लगेगा। फिर विच स्टेट हैज शोन अ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज क्या होता है? ईयर ऑन इंक्रीज का मतलब है कि लगातार इंक्रीज जो चल रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज, एक्चुअली नॉट अ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। ईयर ऑन इंक्रीज का मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज, ईयर ऑन इंक्रीज ये होता है। तो किसने कम, सबसे कम टाइम दिखाया, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट्स सी कितनी बार इंक्रीज हुआ। गुजरात का 1300 से 1360 इंक्रीज हुआ वन टाइम, ये टू टाइम, ये डिक्रीज है, नहीं मानूंगा इसको मैं। दिस इज थ्री टाइम्स, तो गुजरात इज थ्राइस। उत्तराखंड नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, फर्स्ट इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये भी डिक्रीज। आई बिलीव दिस इज क्वाइट क्लियर हाउ आई एम फाइंडिंग आउट। ये भी इंक्रीज है, ये सेकेंड इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज है, ये थर्ड इंक्रीज है, ये फोर्थ इंक्रीज है। आर यू गाइज क्लियर हाउ आई एम मेकिंग इट, कैसे मैं इंक्रीज फाइंड कर रहा हूं? आर यू गाइज क्लियर ऑन इट? वेरी गुड। वेस्ट बंगाल सेज डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये भी डिक्रीज है। दिस इज डिक्रीज, डिक्रीज, ये इंक्रीज है, यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, दिस इंक्रीज। क्वेश्चन है मिनिमम उत्तराखंड सिर्फ एक ही बार इंक्रीज हुआ, बाकी हर साल उसका जो प्रोडक्शन है जो भी गिवन है व्हीट का, दैट इज ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो उत्तराखंड इज माय आंसर। आई बिलीव इट इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी, इट शुड बी क्वाइट सिंपल। इट वाज थोड़ा ट्रिकी था, सिर्फ इस वर्ड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज को समझना डिफिकल्ट हो सकता है अगर होगा किसी के लिए, अदरवाइज ये भी क्वाइट सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राजस्थान को एक्सक्लूड कर दो, उसको मत लो।
व्हाट इज द एवरेज वीट प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल स्टेट्स। अब अगर आप देखो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन आने वाली है, क्योंकि राजस्थान को छोड़ के आप सारी स्टेट्स का वीट प्रोडक्ट ऐड करोगे, एवरेज लोगे। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा तो यहां से फटाफट एडिशन हो जाएगा। तो एग्जाम में कई क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन इंटेंसिव। अगर आपने ऑब्जर्वेशन से किया है, दो तीन आपने कंपेयर कर लिया होगा, बाकी दो तीन को आपको करना पड़ेगा। तो हमेशा सजेस्टेड क्या है एग्जाम के अंदर, अगर एक कोई भी आपके पास पाई चार्ट है, टेबल है, लाइन चार्ट है, या कुछ भी डीआई या कोई भी टॉपिक है, हर एक के साथ 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस एवरी टाइम। व्हाट यू गाइस हैव टू डू, मेक श्योर कि उन 4 to 5 क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, डोंट डू दैट, उसको छोड़ दो, उसको बाद में कर लेना अगर टाइम मिले। अदरवाइज जो बाकी 3 या 4 क्वेश्चन है आउट ऑफ 5, अटेम्प्ट देम फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपका टाइम बच जाए, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम को बचाना भी बड़ा जरूरी है। लेट्स गो द नेक्स्ट वन, नंबर 4। By what percentage the quantity of wheat produced by West Bengal in 2003 more or less than the wheat produced by Gujarat? ये भी पहले टाइप का क्वेश्चन है, तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि वेस्ट बंगाल में 2003 में कितना था और व्हीट गुजरात 2002 में कितना था। तो उनका डिफरेंस ले लेंगे, जो भी टेबल से डिफरेंस आएगा डिवाइड बाय, कंपेयर किससे कर रहे हैं, एज आई सेड यस्टरडे, लेस देन द व्हीट। तो जो देन के बाद आ रहा है इससे कंपेयर करना है, वो क्या है, गुजरात। तो डिफरेंस लेने के बाद गुजरात से करेंगे कंपेयर, मल्टीप्लाइड बाय 100, आई गेट माय आंसर। इन्होंने टेबल से आंसर्स निकाले हुए हैं, वेस्ट बंगाल 140, गुजरात 1730, डिफरेंस लिया 280, डिवाइड बाय गुजरात रखा है। सॉरी, इन्होंने क्या किया, दे हैव केप्ट 1730, या दैट्स राइट, गुजरात रखा है, सो दैट इज गुड, वी कैन गेट द आंसर। अब देखो 16.18% आंसर आया मेरा यहां पर भी। अब इतना क्लोज आंसर आप कैसे निकालोगे, दोबारा कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखो। जैसे कैलकुलेशन है 280 बाय 1730। अब देखो गेस वर्क करो, आपके पास ऑप्शंस होंगे, जैसे मैं कह रहा हूं इनटू 100, तो 10 से 10 गया। टेक द फर्स्ट टू नंबर्स, यहां से फर्स्ट टू नंबर ले लो 28। नाउ 17 इंटू 1 17, रिमाइंडर इज 11, मतलब 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 6 102, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 116 समथिंग आने वाला है। यहां से गेस वर्क हो जाता है, तो आप एग्जैक्ट ना भी कैलकुलेट करो, ऑप्शंस आपके पास, यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स। लास्ट, द टोटल व्हीट प्रोड्यूस इन 2000 इज मोर देन 99 बाय व्हाट अमाउंट, अमाउंट ही बताना है, सिर्फ सिंपल सा प्लस माइनस करना है, कुछ भी नहीं। आई थिंक दैट इजीली कैन बी डन। इज द सेकंड पजल इज डुएबल, कर लोगे आप लोग। एक दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन नहीं करवाया, बिकॉज आई वुड लाइक टू फिनिश डीआई टुडे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बचा, ज्यादा तो बचा नहीं है, तो लेट्स जस्ट फिनिश इट टुडे। देन वी हैव इनडायरेक्ट डेटा। नाउ इनडायरेक्ट डेटा किस तरह से होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। नाउ इनडायरेक्ट डेटा ये वाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द क्वेश्चन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 4 स्टूडेंट्स है ए से डी, तो ए बी सी डी of a school appear for an exam having 5 subjects: physics, English, history, Hindi, maths. Each student appears for all the 5 subjects. ठीक है जी। The table below shows the percentage score. तो ये इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। ए का फिजिक्स में 80 मार्क्स नहीं आया, इंग्लिश में 88, हिस्ट्री में 78, हिंदी में 69, मैथ में 76 नहीं है, ये सब परसेंटेज है। ये इनडायरेक्ट डेटा है, तो मुझे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट सारे की नहीं करूंगा, एग्जाम स्पेसिफिक, क्वेश्चन स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। अब हर बच्चे के ईच सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट सब्जेक्ट इज आल्सो गिवन। तो 75 में से मार्क्स है, फिजिक्स का पेपर 75 मार्क्स का है, इंग्लिश का 100 मार्क्स का, हिस्ट्री का 50, हिंदी का 100 एंड मैथ 75 मार्क्स का टोटल एग्जाम, टोटल स्कोर जो है। तो 80%, ये 48%, ये 92%, ये 28%, ये सब परसेंटेज में। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बी। तो बी का अगर 48% लेना है मुझे, तो व्हाट आई कैन टेक,
नाउ बी का 80%, बी का 48%। अब देखो इसको करने का तरीका, मैं आपको दूसरे वाले टेबल पे ले जाता हूँ, पेज पे ले जाता हूँ। नाउ 48% ऑफ 75। देखो एग्जामिनर को पता है कि बच्चे मेरे पास +2 वाले बैठे हैं या ग्रेजुएशन वाले बैठे हैं, जो भी हैं, सो वो क्वेश्चन ऐसे देगा जो डुएबल होता है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, आई इजिली कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है 25 into 3, 25 into 4 है। दिस इज 4 and 12, मतलब 12 into 3 36। आप एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व दिस, कि 75 का मतलब है 48 का 3/4। मतलब 48 किस टेबल पे डिवाइड 4 से डिवाइड होता है? 12 से। 12 into 4, तो मेरा आंसर है 12 into 3 36। इसका फायदा क्या है? अब मेरे पास जो टेबल सामने क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर मुझे देखना है 48, 75, so this number I know is actually 36। तो 80 किसका किसका मल्टीपल जाता है 4 पे? 20 into 4, तो इसका मतलब है 60 मार्क्स। ये एग्जाम में करना नहीं है, पहले मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं अभी। 92 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आएगा 23, मतलब 23 into 3 69। 28 7 into 4, तो ये टोटल स्कोर है 7 into 3 21। कितना इजी हो गया। एक छोटी सी चीज समझी कि ये इंटू 3/4 करना है, एंड वी कैन इजिली गेट आवर आंसर। सेम वे 50 होता है 1/2, मतलब 78 का मतलब है 39, 54 का मतलब है 27, 66 का मतलब है 33, और 50 का मतलब है 25। ये 100 में से है, तो ये मार्क्स तो ऐसे के ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही है। दिस अगेन 76, 76 डिवाइड बाय 4 19, तो ये हो जाएगा 57। 13 into 4 53, 52, तो 13 into 3 39, 15 into 4 60, तो ये हो गया 45। ये 8 into 4, तो 8 into 3 24। क्या ये कैलकुलेशन, अब दिस इज द कैलकुलेशन विच यू गाइस हैव टू लर्न एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम में एक एक को करना, सोल्व नहीं करने बैठोगे। ये स्ट्राइक होना चाहिए आपके माइंड में एकदम से कि ये तो ऐसे हो सकता था। इज दिस कैलकुलेशन क्लियर विच आई डिड? डज इट मेक सेंस टू यू गाइस? इज इट क्लियर? ग्रेट। तो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बी? अब बी के मार्क्स आप ऐड कर लोगे, 36 and 47, that comes out to be 83, 83 and 27 110, and 92 202, and 39 241, डिवाइड बाय। अब आप लोग जैसे अपने परसेंटेज निकालते हो वैसे ही निकालने। 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 50 200, 300 400, तो 241 डिवाइड बाय 400 into 100, zeros cancelled out, the answer is 60, then 10.25, this is the answer you're gonna get। क्वाइट सिंपल। देखने में लग रहा था पता नहीं कैलकुलेशन कितनी सारी करनी पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, तो आपका कुछ सेकंड्स में आंसर निकल आएगा। अभी कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज मार्क इन हिस्ट्री एंड हिंदी, एंड डीज मार्क इन इंग्लिश एंड मैथ, मतलब इन दोनों को ऐड करना है आपको। अब ए के मार्क्स हिस्ट्री और हिंदी में कितने हैं? ए के हिस्ट्री में है 39, हिंदी में है 69, टोटल हो गया 108। डी के मार्क इंग्लिश और मैथ्स में, इंग्लिश में 71, मैथ्स में 24, दैट इज 95। डिफरेंस कितना हो गया? 5 and 8 13। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज स्कोर पर स्टूडेंट इन फिजिक्स। नाउ फिजिक्स का एवरेज स्कोर 60 and 36 96, 96 and 69 165, 165 and 21, that is 186। तो 186 डिवाइड बाय 4, बिकॉज 4 बच्चे हैं। पर स्टूडेंट मतलब पर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे आएगा। सो गोना बी 4 into 4 16, 4 into 6 24.5,
5. दैट इज द आंसर आई गेट. बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन. चाहे इनडायरेक्ट डेटा था, बट अगर आपको करना आता है, इट इज इजी फॉर यू. इज दिस ऑल्सो क्लियर? ग्रेट. एक और क्वेश्चन है. द टेबल बिलो शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 4 पीपल इन 4 डिफरेंट मंथ. द डिस्टेंस गिवन क्यूमुलेटिव. अब इस टेबल में अगेन इनडायरेक्ट डेटा है, आपको क्यूमुलेटिव दिया हुआ है. मतलब सचिन का ये जो हमारा गाड़ियां हैं, वट एवर वी ड्राइव, कार, एक्टिवा और बाइक, स्कूटी एटसेट्रा, उस पे ना एक ओडोमीटर लगा होता है. वो जो ओडोमीटर है उसका काम क्या है, वो आपको देता है रीडिंग कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है. दैट इज व्हाट द ओडोमीटर इज ऑल अबाउट. ना उस ओडोमीटर की रीडिंग्स हैं ये. जनवरी के एंड में 12083, फरवरी एंड में 13768, मार्च में 15643, अप्रैल में 16123 एंड सो ऑन. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय राजेश इन फरवरी. राजेश का फरवरी में ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो फरवरी तक है, उसने इन फरवरी पूछा है. तो मैं इसमें से फरवरी एंड में से जनवरी एंड माइनस करूंगा. 17,343 minus 16,702. I'll get my answer at 641 or whatever the answer is. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड. एवरेज मतलब डिवाइड करना पड़ेगा. कवर्ड बाय किरण फ्रॉम फेब्रुवरी टू अप्रैल. नाउ फेब्रुवरी 1, प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम फेब्रुवरी मतलब फेब्रुवरी एंड नहीं बोला उसने, 1 फेब्रुवरी से 30 अप्रैल, मतलब फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल. अब फेब्रुवरी 1 पे जो रीडिंग होगी वो जन एंड की रीडिंग होगी. कौन है ये? किरण है. तो किरण की फेब्रुवरी बिगिनिंग में रीडिंग है 6700, अप्रैल के एंड पे है 9109, राइट. तो डिफरेंस ऑफ, आई टेक बोथ दीज वैल्यूज, दैट इज कमिंग आउट टू बी 9 minus 09, 0 minus 00, then we have 11 minus 7 4 and 8 minus 6 2. अब डिवाइड किससे करें? 1 2 3 4, 4 से गलत. फेब्रुवरी टू अप्रैल, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, डिवाइड बाय 3. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी है, बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है जो हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट दैट मच इजी ऑल्सो. वन हैज टू रियली रीड अबाउट इट. The last question, I believe, of this table, the distance covered by Suresh in Jan is approximately what percent higher than distance covered by Sachin till March. अब सुरेश का जनवरी में कैसे निकालू? ये तो जनवरी का एंड है, ये नंबर तो मैं फाइंड ही नहीं कर सकता. कैसे फाइंड करूं? जनवरी में, ये तो जनवरी का एंड है, आई कांट फाइंड आउट. इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड और समथिंग लाइक दैट. अच्छा, दिस दे हैव डन इट रॉन्ग, आई बिलीव दिस दे हैव डन इट रॉन्ग. पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मेरा क्वेश्चन मुझे साफ बोला था कि ये क्यूमुलेटिव है. दे हैव सेड दे आर क्यूमुलेटिव इन नेचर. सो जब वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय सुरेश, या तो क्वेश्चन यहां पता है क्या होगा जो उन्होंने सोल्व किया है, यहां पे इन की बजाय अगर लिखा हो सुरेश टिल जैन इज अ व्हाट परसेंट हायर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय सच. ये देखो यहां पे टिल मार्च लिखा हुआ, वो प्रिंटिंग इशू है, इसका मतलब दिस इज अ प्रिंटिंग इशू. सुरेश टिल जैन, दैट इज 24356. सचिन टिल मार्च, दैट इज 15643. अब ये निकालना है आपको, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100. दैट वाज अ क्वेश्चन का प्रॉब्लम आई बिलीव. तो कितना परसेंट वहां से और मोर और लेस अगर पूछा है तो डिफरेंस लेके कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया. बिकॉज द क्वेश्चन सेज व्हाट परसेंट हायर देन, तो मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा, इसका मतलब है, और कंपेयर करना पड़ेगा सचिन से, क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए मुझे यूज करना है.
हु कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस इन अप्रैल? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट अप्रैल में हर एक ने कितना कितना चलाया। तो वो आपको लास्ट जो रो है, फॉर एग्जांपल सचिन के लिए 16,123 माइनस 15,643, किरण के लिए 9,109 माइनस 8,340, 30,198 माइनस 28,000 एंड 17,000 से माइनस, अगर मैक्सिमम पता है तो मैक्सिमम देखते समझ आ रहा है 2,000 का फर्क है यहाँ पे स्ट्रेट अवे। मिनिमम है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500, ये ज्यादा है उससे, ये और भी कम है, तो मिनिमम में राजेश आ जाएगा, मैक्सिमम में सुरेश आ जाएगा। इफ दे हैव अ क्वेश्चन लाइक दैट, सुरेश कवर द मैक्सिमम। नाउ दिस इज द इनकम्प्लीट टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट गिव मी अ पोल कि अभी तक सब कुछ क्लियर है, सो वी कैन गो अहेड। Almost everybody said yes. One or two more students are left. Great. Let's continue. Now ये है आपका इनकम्प्लीट टेबल। कुछ सेल्स इसके अंदर अगर आप नोटिस करो मिसिंग है, ये सब मिसिंग है, यहां कुछ लिखा ही नहीं हुआ, वी हैव टू फिल इट अप। अब कहता है 5 क्लासेस मेंसा, वेलेंकर, जेके शाह, कापसी एंड एमटी, they provide coaching for CIPCC examination. All the students who have appeared for this exam are from one of these classes. तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया वो सारे के सारे इन्हीं क्लासेस से हैं, इन्हीं 5 कॉम्पिटिटर हैं ये। दे आर नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ए बी सी डी ई मान लो इनको, चाहे मेंसा, वेलेंकर, जेके शाह, कपासी एंड मेमटी। 5 अलग अलग कंपनीज हैं उनके। मतलब जो भी बच्चा सीए आईपीसीसी का एग्जाम देने वाला है वो यहीं से हो सकता है, उसके अलावा बच्चा कहीं और से पढ़ा ही नहीं है, कोई सेल्फ स्टडी नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट मीन्स यही लोग अपीयर कर रहे हैं 2001-2 में, 2002-3 में दीज पीपल गोना पार्टिसिपेट, 3-4 में नीचे वाले, 4-5-6 एंड सो ऑन। और फिर कहता है ऑल्सो एवरी स्टूडेंट एनरोल्ड इन एनी ऑफ द क्लासेस इन एनी गिवन ईयर, वो अपीयर भी हुआ है। Now table below shows the percent of students appearing for exam of these classes for the period this. तो टेबल ने आपको ये दिखा दिया। Now this is percentage. अब इसका मतलब क्या हो? मतलब सम ऑफ परसेंटेज हर एक साल का 100% होना चाहिए। तो फ्रॉम दैट बेसिस मैं ये नंबर निकाल सकता हूं, 19 and 17 and 21 and 20, 21 and 19 is 40, 50, 60, 70, 77. That means this number is 23. Right? ऐसे ये सारा टेबल फिल किया जा सकता है। नीचे वाले टेबल फिल करके दे भी दिया आपको। So they have given this table to you. अब अगर मैं टेबल को थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये सिंगल लाइन वाला ये भी आ जाएगा आपके पास, दिस आंसर ऑल्सो यू विल गेट, ये भी मिल जाएगा। अब यह दो दो ब्लैंक्स हैं, इसको कैसे मिलेगा 2002, 3 और 5, 6 में? उसके लिए जो मेरी लाइन थी, जो मैं सेकेंड लाइन मैंने आपको बोली, विच यू कैन सी हियर, एवरी स्टूडेंट एनरोल्ड, जो मेंसा में इन 5 सालों में बच्चे पढ़े हैं सभी ने टेस्ट दिया है, तो मतलब ऐसे भी 100% होना चाहिए, वर्टिकल भी 100%, हॉरिजॉन्टल भी हॉरिजॉन्टल भी 100%। तो ये वाले नंबर्स तो आप फिल कर लोगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आने के लिए अब आपको वर्टिकली ये वाला नंबर फिल हो जाएगा, ये वाला फिल हो जाएगा, बिकॉज ये भी 100 होना चाहिए सारा, ये भी 100 होना चाहिए, ऑल दिस नंबर शुड बी 100, ये सारे अब फिल हो जाएंगे आपके। सो द टेबल विच दे हैव गिवन बिलो, दे हैव प्रिपेयर्ड लाइक दैट। क्वेश्चन है, अगर 18,500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन 2002-3, तो ये सारा का सारा जो टोटल है दैट इज 18,500, पूरा का पूरा 100%। देन हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम मेंसा, तो मेंसा से कितने 18% है, इनटू 18/100 आपका आंसर आ जाएगा। Just multiply, you will get the answer. That is 3,330. Simple. फिर ये कहते हैं what is the ratio of number of students who appeared from Kapsi in 2003-4? This is 2003-4.
तापसी की बात चल रही है। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फ्रॉम जेके शाह इन 2005-6, तो मतलब दिस नंबर टू जेके शाह इन 5-6, ये भी 26% है। अब मुझे नहीं पता कि 2003-4 में कितने आए, तो मैं किसका निकालूं। मुझे नहीं पता 5-6 में कितने आए, मुझे नहीं पता 26% किसका निकालना है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया 30,000 स्टूडेंट्स अपेयर फॉर द एग्जाम, तो मतलब ये 26% ऑफ 30,000 है, तो ये 19% ऑफ 30,000 है। उस हिसाब से ये भी 26% ऑफ 30,000 होना चाहिए, बिकॉज ये 19% है, ये भी सारा 100% बनेगा, तो मतलब दोनों इक्वल आने वाले हैं। आंसर विल बी 1:1, मतलब ये सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। दे हैव सोल्व्ड इट, आई डोंट वांट दैट। हम सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि ये नंबर, ये बीच में ये जो नंबर 19 है, ये दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन है, तो ये कुछ भी हो, चाहे ये 30,000 ना भी हो, ये एक्स ही हो, 26% ऑफ एक्स, ये 19% ऑफ एक्स, तो ये भी तो 19% ऑफ एक्स यहां से बनेगा, मतलब ये भी 26% ऑफ एक्स ही बनेगा। दैट मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन गोइंग टू बी इक्वल। ऐसे ही बाकी सभी भी होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between the total number of students who appeared from Mensa in 2005-6 and JK Shah in 2003-4? Now, अब आपको कैलकुलेट कर सकते हैं जी, हमें नंबर्स दिए हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था 18,500, दूसरे में गिवन है 30,000। आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब भी ये इफ वाली चीजें आ जाती है, जैसे पहले क्वेश्चन में है इफ, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, उसके आगे एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसे ये वाली इंफॉर्मेशन ये सिर्फ सेकंड क्वेश्चन के लिए है, थर्ड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एप्लीकेबल सबके लिए होता तो वो यहां मेन इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए थी, वो यहां पे नहीं है। तो ये आपको जानबूझ के इंफॉर्मेशन देने के बाद कंफ्यूज कर दिया उन्होंने कि व्हाट इज द डिफरेंस, बच्चा निकालना शुरू कर देगा, बट आपको पता ही नहीं नंबर्स कितने हैं, तो आंसर आप फाइंड ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड द आंसर्स। आर दीज थ्री क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर? Because this ends the tables topic also. I'm sending the chat, in the public chat, the PDF for this also. You guys can download it from the chat option, and as usual, right, download it, and after that you guys can leave the class. आई थिंक जो दूसरी शीट है उसको देने की जरूरत नहीं है, उसमें हमने सिर्फ एक पेज ये किया था, एंड द अदर पेज वी हैव डन दिस थिंग। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। समबडी वुड लाइक टू टेक, कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एक पेज के लिए पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है मुझे। Anybody has any doubts, any questions, they may please ask.